اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت السرور کا سبق نمبر 4، 6 اقسام کا بیان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سبق نمبر 3 میں کلمے کی مختلف اعتبارات سے 5 تقسیمات کی تھی، اور اس وقت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں سے ہر تقسیم پر باقاعدہ طور پر تفصیلاً آگے پورا کا پورا ایک سبق موجود ہے۔ تو بس اب وہ وقت آ چکا کہ میں آپ کو کلمے کی جو پہلی تقسیم ہم لوگوں نے کی تھی 6 اقسام، یعنی اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی تھی، اور جس کا نام ہم نے 6 اقسام رکھا تھا، تو بس اب اس سبق میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس 6 اقسام کو تفصیلاً انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سبق کی طرف بڑھوں، 1-2 باتیں میں آپ کو اس سبق کے حوالے سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ابھی آپ فی الوقت میں اس سبق کو پڑھنے سے پہلے کلمے کی تعریف ایک مرتبہ آپ دوبارہ سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ کلمہ کسے کہا جاتا ہے۔ بہت آسان تعریف ہے، کلمہ ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ 6 اقسام کسے کہا جاتا ہے، تو بس یاد رکھیں 6 اقسام اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جو تقسیم کی جاتی ہے اسے 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں، یہ بھی آپ کے لیے بہت مفید ہوگا کہ 6 اقسام کو 6 اقسام کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں فارسی میں 6 جو ہے وہ 3 کو کہتے ہیں، اور صرفیوں نے اس جو کلمے کی جو تقسیم ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، اس اعتبار سے اسے 6 اقسام کا نام دیا گیا ہے۔ اب کتنے حصوں میں تقسیم کیا اور کون کون سے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف۔ تو اب میں آپ کو سب سے پہلے اسم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم کیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ ویسے تو اگر میں آپ کو عام طور پر اگر میں آپ کو اسم سمجھانا چاہوں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسم کوئی بھی نام، آپ کو معلوم ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں، اور نام کسی بھی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شخص کا بھی نام ہو سکتا ہے، اور کسی بھی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ اور ہم اگر اپنے ہی اطراف کی چیزوں میں یا جو بھی فوراً سے ہمارے ذہن میں آنے والی چند چیزیں ہیں اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں تو اسم کی تعریف معلوم ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں دروازہ، ٹھیک ہے، نام ہے، ایک چیز کا نام ہے۔ میں کہتا ہوں اسلم، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نام ہے، تو یہ بھی اسم ہوگا۔ اچھا، میں کہتا ہوں آسمان، یہ بھی ایک چیز کا نام ہے، تو یہ بھی اسم ہوگا۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں مسجد، یہ بھی ایک نام ہے۔ میں کہتا ہوں کراچی، یہ بھی ایک نام ہے۔ تو اسم کیا ہے؟ اسم کسی بھی نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ لیکن اب ہم صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں، تو صرف اور نحو کے اعتبار سے ہمیں اس کی تعریف کو کس طرح سے ذہن میں رکھنا زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسم کسے کہتے ہیں صرف کی اصطلاح میں اور نحو کی اصطلاح میں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پڑھ رہے ہیں 6 اقسام، اور یہ جو تقسیم پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم دیکھیں کہ کون سا کلمہ ایسا ہے کہ جو اپنا معنی اکیلے ظاہر کر دیتا ہے، اور کون سا کلمہ ایسا ہے کہ جو اپنا معنی اکیلے ظاہر نہیں کرتا ہے۔ بس اسم کیا ہوگا؟ وہ کلمہ ہوگا اسم جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ تو اسم کے بارے میں ایک بات تو مجھے معلوم چل گئی، اور وہ کیا کہ اسم اپنا معنی اکیلے بتا دیتا ہے اور غیر کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کا معنی تینوں زمانوں سے مطلب 3 زمانے ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال اور ایک مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ ماضی کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہوتا ہے، جیسے کہ میں آپ سے کہوں میں کھانا
खाता था, मैंने नमाज पढ़ ली, मैं पंजाब गया था। तो अब आप देखें गया था, खाना खाता था, मैंने नमाज पढ़ ली। अब आप देखें इन जुमलों पर गौर करके देखें तो मालूम चलेगा कि इन तमाम के तमाम जुमलों का ताल्लुक किससे है? माजी से। हाल क्या है? हाल ये है कि मतलब मैं यूं इसके कुछ जुमले मैं आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, असलम अपना काम वक्त पर करता है। असलम अपना काम वक्त पर करता। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ। इन तमाम के तमाम जुमलों का ताल्लुक आप देख रहे होंगे किससे है? मौजूदा ज़माने से, हाल से है। तो हाल भी समझ में आ गया, माजी भी समझ में आ गया। मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल में मैं यूँ कहूँ कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाऊँगा, आइंदा बन जाऊँगा आने वाले ज़माने में। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन आप यहाँ पे ये गौर करें कि इस जुमले का ताल्लुक किससे है? मुस्तकबिल से। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि मैं मदीना शरीफ चला जाऊँगा, इस जुमले का ताल्लुक किससे है? इस जुमले का ताल्लुक भी आइंदा आने वाले ज़माने से है। तो माजी, हाल और मुस्तकबिल ये दोबारा से आपने अपने ज़हन में ताज़ा कर लिया है। तो अब आपको इसकी तारीफ़ को, इसम की तारीफ़ को अपने जहन में सर्फ और नहव के मुताबिक अपने जहन में रखना बहुत आसान हो जाएगा। अब दोबारा से मैं आपको इसकी तारीफ़ बताता हूँ। इसम किसे कहते हैं? इसम वो कलिमा है जो अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होता। अकेले अपना माना ज़ाहिर कर देता है, किसी भी कलमे का मोहताज नहीं होता है। और इसका माना तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, माजी, हाल और मुस्तकबिल में से किसी के साथ भी मिला हुआ नहीं होता है। जैसे कि अल मदीना टू और अल बगदादू। अब आप देखें अल मदीना टू, ठीक है, ये तो एक जगह का नाम है। अब आप देखें नाम है, ये तो समझ में आ गया। अकेले अपना माना बता रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल अपना माना अकेले बता रहा है। अब क्या तीनों ज़मानों, माजी, हाल या मुस्तकबिल, इन तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना इसमें पाया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं, इसमें तीनों ज़मानों में से कोई भी ज़माना नहीं पाया जा रहा है। बस इसम क्या होगा? इसम की तारीफ हमारी समझ में आ गई। ना ही इसमें कोई ज़माना पाया जाता है और ये अपना माना ज़ाहिर करने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज भी नहीं होता, बल्कि अकेले ही अपना माना ज़ाहिर कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ फ़ेल की तारीफ कि फ़ेल क्या होगा। हमने इसम के बारे में तो ये पढ़ा कि इसम अपना माना अकेले ज़ाहिर कर देता है और तीनों ज़मानों में से कोई भी ज़माना इसमें नहीं पाया जाता है। तो फ़ेल के बारे में देखते हैं कि फ़ेल क्या अपना माना अकेले ज़ाहिर कर देता है या नहीं करता। तो देखते हैं, वो कलिमा है फ़ेल, वो कलिमा है जो अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं। तो मालूम ये चला कि फ़ेल भी अपना माना अकेले ज़ाहिर कर देता है, किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होता। क्या तीनों ज़मानों में से इसमें कोई ज़माना पाया जाता? बिल्कुल, तीनों ज़मानों में से लाजमी सी बात है कि तीनों ज़मानों में से कोई ना कोई एक ज़माना इसके साथ ज़रूर पाया जाएगा, वरना फ़ेल ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ दरबा, मारा उस एक मर्द ने। अब आप इस पर गौर करके देखें, मारा उस एक मर्द ने, बताएं अकेले अपना माना ज़ाहिर कर दिया? तो आपका जवाब होगा हाँ, माना तो अकेले ज़ाहिर कर दिया। अब मैं आपसे दूसरा सवाल अगर मैं आपसे करूं, क्या तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना इसमें पाया जा रहा है? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, इसमें माजी का ज़माना पाया जा रहा है। क्योंकि इस जुमले को सुनने के बाद, इस फ़ेल को सुनने के बाद हमें ये मालूम चल रहा है कि ये जो काम हुआ है वो कब हुआ है? वो गुज़िश्ता ज़माने में हुआ है, माजी में हुआ है। तो बस फ़ेल होता ही वो है कि जिसमें कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है। तो मैं आपको एक मरतबा तारीफ़, एक मरतबा दोबारा से मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ और फिर उसके बाद इसम और फ़ेल दोनों में मैं आपको फ़र्क करके मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से अगर हम लोग फ़र्क करके दोनों को पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा मुफीद हो जाएगा। फिर जब हम हर्फ की तारीफ़ पढ़ेंगे तो फिर मैं तीनों को कंपेयर करके मैं आपको बता दूँगा। तो फ़ेल क्या है? वो कलिमा है
जो अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होता। तीनों ज़मानों यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल, तीनों ज़मानों में से किसी न किसी एक ज़माने के साथ इसका माना ज़रूर मिला हुआ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस तरह से फ़र्क है। वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन इस तरह से दोहराने का और इआदा करने का मतलब ये होता है कि आपको ये सबक जो है वो अच्छी तरह से आपके जहन में बैठ जाए। इसम भी अपना माना ज़ाहिर करने में दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होता और फ़ेल भी अपना माना ज़ाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होता। तो फिर दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क क्या है? दोनों में बुनियादी तौर पर फ़र्क यह है कि फ़ेल में ज़माना पाया जाता है और जबकि इसम में ज़माना नहीं पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ हर्फ की तारीफ। हर्फ क्या होगा इसे भी बिल्कुल इसी तरह से ही याद रखें। देखें, पहले आप इसको समझ लें हर्फ क्या है। अगर हम लोग आम तौर पर अगर हर्फ को समझना चाहें, जैसे आपने देखा होगा उर्दू में हम कहते हैं से, हम कहते हैं तक, हम कहते हैं को, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं हुरूफ। अच्छा, अब क्यों हुरूफ है? आप गौर करके देखें कि ये जो से है ये अपना माना अकेले जाहिर कर देता है या नहीं करता? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये जब तक किसी से नहीं मिला होगा जब तक ये अपना माना जाहिर नहीं कर सकता है। बस हर्फ की तारीफ यही है कि हर्फ किसे कहा जाता है। हर्फ वो होता है कि जो वो कलिमा है जो अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज होता है या नहीं, बल्कि अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में ये किसी दूसरे कलमे का मोहताज होता है। अपना माना अकेले नहीं जाहिर कर सकता, या तो इसम के साथ मिलके करेगा या तो फिर फेल के साथ। अकेले अपना माना जाहिर नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तो क्या तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ इसका माना मिला हुआ होता है या नहीं होता? नहीं, तीनों ज़मानों में से किसी ज़माने के साथ इसका माना भी मिला हुआ नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें दोनों क्वालिटी नहीं है, यानी ना ही ये अपना माना अकेले जाहिर कर सकता है और ना ही तीनों ज़मानों में से इसमें कोई ज़माना पाया जाता है। तो बस हर्फ यही है, वो कलिमा है जो अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज हो और तीनों ज़मानों में से किसी भी ज़माने के साथ इसका माना मिला हुआ ना हो, जैसे मिन और जैसे कि इला। एक मिसाल है, सिरतु मिनल बसराती इलल कूफा, मैंने सैर की बसरा से कूफा तक। अब आप देखें इसमें मिन इस्तेमाल हुआ और इसमें इला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये मिन और इला जब तक ये इसम या फ़ेल के साथ नहीं मिलेंगे, जब तक ये मिन और इला अपना माना अकेले जाहिर नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको आखिर में इस पूरे के पूरे सबक का मैं आपको एक मरतबा खुलासा बता देता हूँ कि देखिए, हमने इसमें पढ़ा सह अक़साम का बयान, और सह अक़साम किसे कहते हैं? अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज होने या ना होने के एतबार से जो तकसीम की जाती है उसे सह अक़साम कहा जाता है। तो सह अक़साम को सह अक़साम क्यों कहा जाता है? सह अक़साम को सह अक़साम इस वजह से कहा जाता है कि फ़ारसी में सह जो है वो तीन को कहते हैं और इसे सर्फियों ने तीन हिस्सों में तकसीम किया, इसी वजह से इसे सह अक़साम कहा जाता है। कितने हिस्सों में तकसीम किया? तीन हिस्सों में किया। कौन कौन से हिस्सों में किया? इसम, फ़ेल और हर्फ, इन तीन हिस्सों में तकसीम किया। इसम क्या होगा? इसम वो होगा जो अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होगा और तीनों ज़मानों में से इसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाएगा। फ़ेल क्या होगा? फ़ेल अपना माना जाहिर करने के सिलसिले में ये भी किसी दूसरे कलमे का मोहताज नहीं होगा तीनों ज़मानों में से, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई ज़माना लाजमी पाया जाएगा। हर्फ क्या होगा? हर्फ ना ही
اس میں کوئی زمانہ پایا جائے گا اور نہ ہی یہ اپنا معنی اکیلے بتا سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مختصر سا سبق بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔